Good morning, everyone. I am Hemlata Yadav. I am your teacher. And today we are going to revise chapter 22, that is chemical control and coordination. This is of class 11 biology. And we are doing this revision so that the students who are in the annual examination can get help from. So, what is chemical coordination? You know that chemical coordination occurs because of the hormones that the endocrine glands produce. We have many different kinds of endocrine glands which are located in various places in our body, and all those endocrine glands are producing some chemical messengers which are called hormones, which are non-nutritive in nature, but they are signal molecules that can excite or and can suppress the actions of target organs. So these are very low molecular weight substances, and they can be of uh, amino acid nature, protein nature, peptide nature, that is, and also they can be of steroid nature. So we are going to understand this chapter by the help of PowerPoint. And I was just explaining you so that introduction part of this chapter. We have different kinds of glands which are there in our body, and the master gland it is there is in our brain, that is pituitary. So pituitary is the gland which is producing large number of hormones, which indirectly controls pituitary hormones through the blood reach their target organ, and other organs are its target organ because it is a master gland. So it is going to control all other glands inside the body. तो पिट्यूटरी आपका मास्टर ग्लैंड होता है, और ये आपकी बॉडी में जितने भी बाकी ग्लैंड्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है, उनके एक्शंस को कंट्रोल करता है. सो हम आपको पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन से आज का एंडोक्राइन ग्लैंड वाला चैप्टर समझा रहे हैं, उसके एक्शंस सारी बातें बता रहे हैं. So I'm going to share the screen with you. This is the hormone and the endocrine gland. The screen is being shared and we will be understanding this topic now. Hormones and the endocrine system. Endocrine system, neuronal system. What is the difference and the similarity of neuronal and hormonal communication? Similarity is that chemicals are stored and released. Both are the active molecules are chemicals of different kinds. Release of chemicals due to stimulation is also the similarity. There are many different hormones and neurotransmitters, and different kinds of hormones are there. So is the case of neurotransmitters are also different kinds. So these are the similarities of hormonal and endocrine system. So we are going to understand this similarities. Now both system reacts specific receptors. Both the nervous system as well as endocrine system, both are reacting the specific at the specific receptor sites. So chemicals nature signal molecule are there. जो signal molecule होते हैं वो chemical nature के होते हैं, और जो chemical release होते हैं वो स्टिमुलेशन से होते हैं. कुछ ना कुछ हमारे एनवायरमेंट क्यूज हमें मिलते हैं जिसकी वजह से हमारे ग्लैंड एक्टिवेट होते हैं और फिर वो हार्मोन्स रिलीज करते हैं. और डिफरेंट तरह के हार्मोन्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं. बोथ सिस्टम रिएक्ट स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जाकर ही सिस्टम्स दोनों, चाहे नर्वस सिस्टम हो चाहे एंडोक्राइन सिस्टम हो, वो रिएक्ट करता है. तो अब हम आगे देखते हैं डिफरेंसेस क्या है इन दोनों सिस्टम्स के. नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन कम्युनिकेट करते हैं दूसरे न्यूरॉन के आसपास के, और हार्मोन में मैसेज सेंड होता है लॉन्ग डिस्टेंस तक. सो नर्वस सिस्टम में तो साइनैप्स नाम का कम्युनिकेशन जंक्शन होता है जहाँ पर एक साइनैप दूसरे साइनैप से मैसेज ट्रांसफर करती है. तो एक साइनैप्स मैसेज भेजती है, दूसरा साइनैप्स मैसेज लेता है,
एक्सॉन टर्मिनल एक न्यूरॉन को न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, दैट इज रिसीव्ड बाय द डेंड्राइटिक टिप, एंड देन इसके अंदर भी सिग्नल आ जाता है। ऐसे ही पर जो हमारे हार्मोन है वो हमारे ब्रेन के थ्रू ब्लड में आए हैं, और ब्लड के थ्रू वो जिस भी टारगेट ऑर्गन पे जाएंगे वहां पर जाके वो सिग्नल बनाएंगे। न्यूरल मैसेजेस इंक्लूड इंड्यूस रैपिड रिस्पॉन्सेज। न्यूरल मैसेजेस बहुत ज्यादा जल्दी एक्शन करवाते हैं एज कम्पेयर टू हॉर्मोन्स विच आर स्लोअर मैसेजेस, और हार्मोन के मैसेजेस स्लोअर होते हैं। न्यूरल मैसेजेस फॉलो द ऑल और नन प्रिंसिपल, मतलब न्यूरल मैसेजेस या तो कुछ एक्शन कराएंगे या कोई भी रिएक्शन नहीं कराएंगे, जबकि हार्मोनल मैसेजेस आर ग्रेडेड इन स्ट्रेंथ। उनका स्ट्रेंथ ग्रेडिंग से आता है, हायर कंसंट्रेशन या तो लोअर कंसंट्रेशन। हॉर्मोन्स आर एक्सट्रीमली पावरफुल। ये हम जानते हैं कि हॉर्मोन्स एक्सट्रीमली पावरफुल है। यहाँ पर प्रोटीन हार्मोन का एक्शन और स्टीरॉयड हार्मोन का एक्शन दिखा रखा है थ्रू डायग्राम के। बाहर से आउटसाइड द सेल जब प्रोटीन हार्मोन आता है तो वो मेम्ब्रेन रिसेप्टर पे ही बाइंड होता है। तो रेड कलर का प्रोटीन हार्मोन जैसे आप देख रहे हो कि इट इज शोन ऑन द स्क्रीन। ये रेडिश प्रोटीन हार्मोन इज एक्सेप्टेड बाय द रिसेप्टर मॉलिक्यूल। ये ब्राउन कलर का रिसेप्टर मॉलिक्यूल है। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री पॉकेट बना है जहां पर आकर आउटसाइड सेल्स में जो हार्मोन है वो आकर इस मेम्ब्रेन के ऊपर, इस सेल की मेम्ब्रेन पे आकर अटैच हो रहा है। वो आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ही इस पे हार्मोन अटैच हो जाएगा तो ये रिसेप्टर सेकंड मैसेंजर मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करेगा, जो कि ब्लू कलर के हैं, यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो इंटरनल टू द सेल ब्लू कलर मैसेंजर, सेकंड मैसेंजर्स आर फॉर्म। अल्टर्ड सेल फंक्शन, इसकी वजह से सेल का फंक्शन कुछ ना कुछ चेंज होगा। मल्टीपल बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ये शो करेगा सेल जिसके ऊपर अभी भी हार्मोन लगा है, तो इसके मल्टीपल इफेक्ट्स इसके अंदर सेल के अंदर शो होंगे। और वहीं जब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि फैट सोल्यूबल रिसेप्टर आता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्लू कलर के फैट सोल्यूबल रिसेप्टर हैं जो कि स्टेरॉइड नेचर के हैं। और ये रिसेप्टर्स के इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन में इसको रिसेप्टर की जरूरत ही नहीं है। अगर स्टेरॉइड नेचर का हार्मोन आता है वो डायरेक्टली क्रॉस हो जाता है मेम्ब्रेन से और वो अंदर आ जाता है, एंड वो डीएनए की मेम्ब्रेन तक को भी क्रॉस हो सकता है, पर उससे पहले साइटोप्लाज्म में वो स्टेरॉइड रिसेप्टर से जुड़ता है। तो स्टेरॉइड रिसेप्टर्स इंटरनल टू द सेल प्रेजेंट होते हैं। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में आपको स्टेरॉइड रिसेप्टर यहाँ पर लाइट ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, वो स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन को एक्सेप्ट कर रहे हैं और फिर न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। न्यूक्लियस में जाकर एक्शन होगा और न्यूक्लियस में जाकर नया इफेक्ट्स शो होगा। न्यू प्रोटीन प्रोडक्शन, मल्टीपल बायोलॉजिकल इफेक्ट्स विल बी गाइडेड बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस रिएक्शन। जो न्यूक्लियस के अंदर वो हार्मोन गया है उसकी वजह से नए प्रोटीन प्रोडक्शन हो जाएगा, मल्टीपल बायोलॉजिकल इफेक्ट्स भी शो हो जाएंगे। So these are the difference in the mode of action of the protein hormone and well as the steroid hormone. This you have to remember. And then three types of hormones. Protein hormones, oxytocin involved in the development of relationships. So three type hormone में सबसे पहला ऑक्सीटोसिन दे रखा है प्रोटीन हार्मोन के जो एग्जाम्पल हैं, जिसमें ऑक्सीटोसिन एक रिलेशनशिप और एक बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्गर करता है। ऑक्सीटोसिन इज द हार्मोन विच इज for affection, for the love, for the care, and the same hormone is responsible for the release of milk from the breast of the female after the delivery to feed the young one. So it is stimulated because of the relationships. Adrenocorticotropic प्रोटीन हार्मोन चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स। तो एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक भी प्रोटीन के चेन्स, प्रोटीन हार्मोन है, इसमें अमीनो एसिड की चेन्स हैं। अमाइन हार्मोन्स जिसमें थोड़ा अमाइन वी कैन से स्मॉल ग्रुप्स हैं जो अमीनो एसिड्स के हार्मोन है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि केमिकल नेचर क्या है हार्मोन का। जो हम कह रहे थे कि केमिकल नेचर डिफरेंट तरह का होता है, पहले हमने प्रोटीन हार्मोन देखे जिसका एग्जांपल ऑक्सीटोसिन और एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन आया है यहाँ पर। और अब हम एडिनोकॉर्टिकोट्रोप के बाद अब हम जो सेकंड कैटेगरी देख रहे हैं हार्मोन की, वो है अमाइन हार्मोन, जिसके अंदर सम रिलेटिवली फास्ट रिसेप्टर रिस्पॉन्स एज प्रोटीन हार्मोन्स आर देयर
ये फास्ट रिसेप्टर रिस्पॉन्स देता है प्रोटीन हार्मोन के मुकाबले। और यहाँ पर देखेंगे कि नॉन एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन इसके एग्जांपल्स हैं सब। इसका हम थायराइड हार्मोन भी अमाइन नेफ्रॉन के एग्जांपल है, मेलाटोनिन हार्मोन भी अमाइन हार्मोन का एग्जांपल है। स्टीरॉयड हार्मोन थर्ड कैटेगरी है हार्मोन की, जो बाइंड होता है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से, स्लो एक्शन कराता है, गोनाडल हार्मोन है ये। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजन, तो ये हमारे जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होते हैं ह्यूमन के, उनके बेसिक हार्मोन्स हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स, जिनके इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होंगे। भी हमने देखा था स्टीरॉयड हार्मोन का एक्शन कैसे होता है, अंदर को साइटोप्लाज्म उसमें रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, तो मेम्ब्रेन से वो पास हो जाता है, बिकॉज मेम्ब्रेन भी लिपिड नेचर की है, ये हार्मोन भी लिपिड नेचर का है। तो गोनाडल हार्मोन इसके एग्जांपल है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजन। एड्रेनल हार्मोन इसका एग्जांपल है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आर द एग्जांपल ऑफ द स्टीरॉयड हार्मोन। मेजर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। अब हम ग्लैंड्स पे आते हैं कि हमारी बॉडी में, जैसे मैं बता रही थी, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे और आपको ग्लैंड्स मिलते हैं। तो आपके ब्रेन में कौन से ग्लैंड्स हैं? हाइपोथैलेमस इज प्रेजेंट इन द ब्रेन, पिट्यूटरी इज प्रेजेंट इन द ब्रेन, एंड थायराइड इज इन द नेक। नेक रीजन में थायराइड होता है। एड्रिनल ग्लैंड आपका किडनीज के सुप्रारीनल ग्लैंड है, तो किडनी के अबव प्रेजेंट होता है ट्रायंगुलर फॉर्म में एड्रिनल ग्लैंड। गोनैड्स ओवरीज और टेस्टिस के को कहते हैं, तो दे आर लोकेटेड इन द पेल्विक कैविटी। पिट्यूटरी की बात अगर करें, एंटीरियर पिट्यूटरी कनेक्टेड टू द हाइपोथैलेमस बाय द पोर्टल सिस्टम। हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम इसको कहते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी डायरेक्टली कनेक्टेड है। एंड इज लोकेटेड इन अ सेला टर्सिका नेम बोनी कैविटी। छोटा कैविटी होता है बोनी कैविटी जिसमें पिट्यूटरी रहता है, उसे सेला टर्सिका कहते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज कराता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज कराता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एग्नोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सब पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं। पार्स डिस्टिलिस से ये प्रोड्यूस होते हैं। एमएसएच इज रिलीज्ड बाय द पार्स इंटरमीडिया। तो पार्स डिस्टिलिस से रिलीज होने वाले हार्मोन की लिस्ट पूरी दी हुई है कि प्रोलैक्टिन, टीएसएच, एसीटीएच, एलएच और एफएसएच पार्स डिस्टिलिस से प्रोड्यूस होते हैं। एंड एमएसएच पार्स इन दोनों के बीच में, एंटीरियर मतलब फ्रंट के पिट्यूटरी के, और पोस्टीरियर यानी कि डिस्टिलिस पिट्यूटरी के, पार्स डिस्टिलिस के बीच में पार्स इंटरमीडिया भी होता है, जो मीडियम पिट्यूटरी का लेयर है, उससे एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये रिलीज होता है। मेलानिन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, हमारे स्किन टोन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, हमारे स्लीप वेक साइकिल। पोस्टीरियर पिट्यूटरी डिराइव फ्रॉम द नर्वस टिश्यू। पोस्टीरियर पिट्यूटरी नर्वस टिश्यू से डिराइव होता है, नर्वस ओरिजिन का है। टू मेजर प्रोटीन हार्मोन रिलीज आर ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ये दो हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी आर सिंथेसाइज्ड इन द हाइपोथैलेमस। जो हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं वो हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होते हैं। And the hormones released from the interior pituitary are dormant unless directed by the release by the hypothalamic by a releasing factors. और जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन हैं वो सारे जब तक रिलीज नहीं होंगे जब तक कि हाइपोथैलेमस उनको रिलीजिंग फैक्टर्स नहीं देगा। पिट्यूटरी और ऑल हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी जो मास्टर ग्लैंड है वो भी हाइपोथैलेमस के ही कंट्रोल में है, तो वो मास्टर का भी मास्टर ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है। एंड हाइपोथैलेमस कुछ रिलीजिंग फैक्टर्स रिलीज करता है, जिसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी अपने हार्मोन रिलीज करा पाता है आफ्टर रिलीजिंग फैक्टर गेन। तो हाइपोथैलेमस ने कौन से रिलीजिंग फैक्टर, कुछ ऐसे रिलीजिंग फैक्टर यानी हार्मोन रिलीज करने हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करे, और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी अपने स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीज करते हैं। हाइपोथैलेमस के हार्मोन कुछ डायरेक्टली पिट्यूटरी के पास पहुंचते हैं क्योंकि वो नर्वस रीजन में है, एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट बिना किसी रिलीजिंग फैक्टर के ही हार्मोन रिलीज करा के टारगेट ऑर्गन को पहुंचा देता है। रिलीजिंग फैक्टर इज आरएस and stimulating factor is S. Stimulating hormone is SH. Hypothalamic hormone, gonadotropin releasing factor, corticotropic releasing factor, thyrotropic releasing factor, growth hormone releasing factor,
प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर, ये सब रिलीजिंग फैक्टर्स पिट्यूटरी पे एक्ट करेंगे और फिर पिट्यूटरी इनके प्रेजेंस में अपने हार्मोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को रिलीज करेगा। जैसे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर के बाद पिट्यूटरी बनाएगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर मिलने के बाद पिट्यूटरी बनाएगा एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन ACTH। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर मिलने के बाद पिट्यूटरी बनाएगा थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर मिलने के बाद पिट्यूटरी रिलीज करेगा ग्रोथ हार्मोन, एंड प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर मिलने के बाद पिट्यूटरी रिलीज करेगा प्रोलैक्टिन। और ये FSH और LH अपने टारगेट ग्लैंड यानी गोनाड्स पे एक्ट करेंगे। एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करेगा, एंड थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड पे। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर पूरा फ्लो चार्ट आपको दिखा रखा है कि पिट्यूटरी ने जैसे ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH रिलीज किया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज किया, तो उसके टारगेट ऑर्गन है ओवरी और टेस्टिस, इन्होंने एंड्रोजन एस्ट्रोजन बनाना शुरू कर दिया। एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ACTH ने जब एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट किया तो इन्होंने कॉर्टिसोल बनाना शुरू कर दिया। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ने जब थायराइड ग्लैंड पे एक्ट किया तो उन्होंने थायरोक्सिन बनाया। ग्रोथ हार्मोन ने जब सेल्स ऑफ द बॉडी पे एक्ट किया तो सेल्स बॉडी में ग्रोथ हुई, और प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन ने बोन्स और ब्रेस्ट पे डायरेक्ट एक्ट करके मिल्क प्रोडक्शन कराना शुरू कर दिया, मिल्क मेकिंग शुरू करवा दी ब्रेस्ट में। तो ये आपके हार्मोन्स के पूरे एक्शन और उनके फ्लो चार्ट था। पिट्यूटरी ग्लैंड एडेनोहाइपोफाइसिस न्यूरोहाइपोफाइसिस दो पार्ट में बांटा हुआ है। एडेनोहाइपोफाइसिस के दो पार्ट्स हैं, पार्स डिस्टिलिस रिलीजिंग जो कि जी ग्रोथ हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन और ACTH को रिलीज कर रहा है, पार्स इंटरमीडिया जो मेलुलोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज कर रहा है, ये एडेनोहाइपोफाइसिस की पार्ट है। और न्यूरोहाइपोफाइसिस पिट्यूटरी सिर्फ दो हार्मोन रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन, यहाँ इसकी जगह C आएगा, ऑक्सीटोसिन एंड ये वेसोप्रेसिन। सो दीज टू आर द pars neurohypophysis that is pars posterior pituitary से रिलीज होते हैं ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। ग्रोथ हार्मोन क्या है? सेल्स ऑफ द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ग्रोथ हार्मोन इज मैक्सिमम टू लिटिल एंड वी हैव वेरी स्मॉल पर्सन। अगर बहुत कम ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा तो स्मॉल हाइट का पर्सन होगा। टू मच एंड वी हैव जाइजेंटिज्म, बहुत ज्यादा रिलीज हो जाए तो जाइजेंटिज्म हो जाएगा। और अगर अडल्ट लाइफ में ये रिलीज होता है तो एक्रोमेगैली हो जाती है, कंटिन्यूड ग्रोथ ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ द बोन्स, मेक्स हैंड्स एंड फेस एंड जॉ और नोज आई सॉकेट्स ऑर्बिट्स इनलार्ज्ड। इसकी वजह से हमारे ये सब पार्ट बड़े हो जाते हैं, इन्हें एक्रोमेगली कहते हैं। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ये इंड्यूसिंग लेबर, चाइल्ड बर्थ के वक्त जो डिलीवरी प्रेगनेंसी टर्म ओवर और 9 मंथ के बाद जब डिलीवरी होती है बेबी की, तो यूट्रस जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करता है वो ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। हार्मोन बॉन्डिंग में भी ये हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन, और हार्मोन रिलेशनशिप्स में भी ये हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन। वैसोप्रेसिन किडनी पर एक्ट करता है, ये स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को, और डिस्टल ट्यूब्यूल्स से ज्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है, इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, हेंस रिड्यूस वाटर लॉस, और वाटर लॉस को बचाता है। तो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन है जो वाटर लॉस को बचाता है। प्रोलैक्टिन ये ग्रोथ को रेगुलेट करता है मेमोरी ग्लैंड की, और मिल्क का फॉर्मेशन कराता है इन देम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ को कंट्रोल करना और उनमें मिल्क बनाना प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम है। गोनाडोट्रोपिन FSH और LH दो तरह के हैं, और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। ये दोनों गोनाड्स के टिश्यूज पर ही एक्ट करेंगे, मियोसिस करवाएंगे उनमें। MSH जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, मेलानोसाइट पे एक्ट करेगा, रेगुलेट करेगा हमारी स्किन टोन, हमारी पिगमेंटेशन, क्या हमारे स्किन का कलर है वो MSH करता है। एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनल कॉर्टेक्स में डिवाइडेड है और मेडुला में डिवाइडेड है। एड्रिनल कॉर्टेक्स के इंटर्न हार्मोन्स है, मेडुला के भी कुछ हार्मोन्स है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स मिनरल कॉर्टिकॉइड नेचर के हैं, जो आउटर लेयर कॉर्टेक्स से बनेंगे ग्लोमेरुलोसा सेल से, जोना ग्लोमेरुलोसा सेल्स से बनता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मिडिल लेयर जोना फैसिकुलाटा से बनते हैं, एंड सेक्स हार्मोन्स भी कुछ एड्रिनल में बनते हैं जो जोना रेटिकुलरिस से बनते हैं। सो 3 जोन्स आपको पता चल गए, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स विच आर आउटर लेयर जोना ग्लोमेरुलोसा से बना है, एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बने हैं मिडल लेयर ऑफ जोना फैसिकुलाटा, एंड सेक्स हार्मोन्स बने इनर मोस्ट लेयर से।
एंड एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजन, जो कि कुछ हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स भी एड्रेनल बनाता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजन, ये कुछ है। एड्रेनल मेडुला इन दो हार्मोन बनाता है माइन नेचर के, नॉन एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन। फंक्शन क्या है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के? स्टिमुलेट ग्लूकोजन नियोजेनेसिस, नया ग्लूकोज बनाने में ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स काम करते हैं। स्टिमुलेट लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस, लाइपोलाइसिस भी कराते हैं, लिपिड का ब्रेकडाउन, प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन करा के ग्लूकोज बनाते हैं। इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड को सेल्स में अपटेक नहीं होने देते और उनको यूज कराते हैं। प्रोड्यूस एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस एंड सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स, ये एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन में कभी आपको लग रहा हो एलर्जी रिएक्शन बहुत ज्यादा हो गई है तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन इंजेक्ट किया जाता है जिससे इंफ्लेमेटरी रिएक्शन सप्रेस हो जाते हैं। स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन, फंक्शन क्या है एल्डोस्टेरोन का? स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयंस एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस एंड वाटर। तो ये स्टिमुलेट कराता है पोटेशियम और फॉस्फेट आयन के रीअब्जॉर्प्शन को, सोडियम आयंस के रीअब्जॉर्प्शन को वाटर से। दस इट हेल्प इन मेंटेनेंस और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बॉडी में बनाता है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम रखता है मेंटेन, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रखता है। थायराइड ग्लैंड, टू लिटिल थायरोक्सिन, हाइपोथायरॉयडिज्म, कम थायराइड अगर बनेगा, थायराइड ग्लैंड गले में होता है, और अगर थायराइड कम बनेगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म होगा जिसकी वजह से डिप्रेशन, अटेंशन एंड मेमोरी प्रॉब्लम्स होने लगेंगी, लो आईक्यू होने लगेगा, डेफ म्यूटिज्म भी, गूंगे बहरे भी हो जाते हैं ज्यादा अगर बहुत ही कम हो गया थायराइड तो, क्रियोटिनिज्म भी हो जाता है। टू मच थायरोक्सिन ज्यादा हो गया तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएंगे, एजिटेशन, इरिटेबिलिटी, ज्यादा जल्दी गुस्सा होना, इरिटेबिलिटी होना, वेट लॉस हो जाना। फंक्शन ऑफ थायराइड क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट, हमारी बॉडी में जितना ग्लूकोज, प्रोटीन, जितना एनर्जी बनना है, जितना एनर्जी यूज होना है उसको रेगुलेट करता है, सपोर्ट करता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी कराता है। सिक्रीट थायरोकैल्सिटोनिन विच रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल, ये इवन हमारे ब्लड के कैल्शियम लेवल को भी कंट्रोल करता है। पीनियल ग्लैंड हमारा डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन में होता है, सिक्रीट मेलाटोनिन विच रेगुलेट्स डायरोनल। पीनियल ग्लैंड भी एक और ग्लैंड है जो ब्रेन में ही है, वो डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन के डोर्सल साइड थोड़ा बैक की तरफ है अंदर, एंड उससे हार्मोन रिलीज होते हैं मेलाटोनिन नाम का, जो कि मेलाटोनिन जो हमारे डायurnal रिदम में, मतलब स्लीप वेक साइकिल, कब नाइट हुई है तो अब हमको नींद आने लगती है और जब सुबह होती है हमारे डेली रूटीन में जब हम जिस वक्त उठते हैं उस वक्त हमारी नाक खुल जाती है, तो ये हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। हमें अपने अंदर से पता चल जाता है कि हम अब उठने का समय हो गया। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बॉडी टेम्परेचर, ये थोड़ा बॉडी टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस हो सकता है, मेटाबॉलिज्म से, पिगमेंटेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल से और डिफेंस कैपेबिलिटी से इन्फ्लुएंस हो सकता है। पैराथायरॉइड हमारा थायराइड ग्लैंड के पास ही पीछे की तरफ चार स्मॉल साइज ग्लैंड होते हैं पैराथायरॉइड, जो पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीज करते हैं, पीटीएच ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। थाइमस ग्लैंड हमारा डोर्सल हार्ट के बिल्कुल पीछे की तरफ अओर्टा के पास होता है, ये इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है। थाइमस ग्लैंड में आपको पता है टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स डेवलप होते हैं और वहां मैच्योर होते हैं। रिलीज ऑफ थाइमोसिन, ये कौन सा हार्मोन बनाता है? थाइमोसिन हार्मोन बना रहा है थाइमस ग्लैंड, जो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम आगे देखेंगे। तो there was some net disturbance in the in between. We were discussing thymus, and thymus develops our immunity, it releases thymosin hormone, and humoral immunity is mediated by the T cells, and T cells are activated by the thymus gland. So आपके फिर इसके बाद आपके कुछ ग्लैंड्स बचे हैं जो कि आपके दैट इज इन द related to the gonads, ovaries, testes, and pancreas. These glands are remaining that you will do on your own because we have studied pituitary, hypothalamus, pineal, thyroid, parathyroid, and thymus. Even we have discussed adrenal glands. So the two glands which are remaining now only are the pancreas, which I have briefly described. Uh, so we will be doing
we will be doing the next glands, that is pancreas, pituitary, thyroid, parathyroid in our next class. And you have to learn pituitary, parathyroid, thyroid, adrenal. We have done in this lecture, and we will be doing the next glands like you can do on your own, like pancreas you can do and gonads you can do. So with this, I would like to end the video here. I hope you have enjoyed the video. I hope you will like and share and subscribe my channel. And for more such videos, please share it with your friends who are in class 11th and 12th biology. Please hit the like button and share.